हम्म, हमने लास्ट लेक्चर में ये नाइक्विक स्टेबिलिटी के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे और उसके बाद जो है ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये था क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकें। सो क्लोज लूप रिस्पॉन्स को कैरेक्टराइज करने के लिए जारी बात है यू आर वर्किंग विद दिस टू फंक्शंस, ठीक है, the complementary sensitivity function and the sensitivity function. Sensitivity function will be important in disturbance rejection, and this complementary sensitivity function is important in tracking, yeah, reference tracking. And these are the bandwidths. Of course, you don't need to memorize these formulas. More important is that to realize that both of them will be very close to omega c, okay, the crossover frequency. And if you plot these together, they are complementary in the sense that when one is high, the other is low. When the other is high, the first one is low, and somewhere in the middle, they both get high. Okay, and this happens near the crossover. So, which also means that these two frequencies are near. So, somewhere in the middle is crossover. Yeah. So that's why I told you last time that they differ from crossover by a factor less than 2. Okay. So W bandwidth will closed loop bandwidth will be larger than omega c by a factor of 2, and this will be smaller, and you can see it from the diagram as well. Yeah, this one is smaller and this one is larger, and somewhere here will be omega c, and this can also be seen after you make all these derivations. The punchline actually is this plot. Okay, so if I, yeah, in this plot it is established that because we normalized both to omega c, yeah, so this one basically represents omega c if you think about it, yeah, that's because you normalize it. So omega bandwidth or band closed loop bandwidth, you see, is yeah, close to omega c by less than a factor of 2, क्योंकि 2 से नीचे रहता है ये प्लॉट, ठीक है, और ये हाफ से ऊपर रहता है. सो हाफ से ऊपर का मतलब ये है कि इट्स ओमेगा disturbance relation bandwidth is less than WC by a factor of 2. Yeah, um, at the maximum difference, I mean, it gets closer as well. And the closed loop bandwidth is higher than omega c, but it cannot go higher than a factor of 2. तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है. ये हमने इसलिए चाहिए कि ये मैं अभी से क्लियर कर दूं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, वो फॉर एग्जांपल राइस टाइम की होंगी, आपको याद होगा राइस टाइम रिक्वायरमेंट आपको याद है, ठीक है. राइस टाइम इफ यू रिमेंबर ट्रांसलेट्स टू बैंडविड्थ, या याद है आपको, इसमें 2.2 का फैक्टर था, 2.2 divided by 1 you get the other. And similar, so this will be if you are tracking. If you are focusing on disturbance rejection, तो फिर राइस टाइम उस हिसाब से होगा, ठीक है ना. डिस्टर्बेंस रिजेक्शन के लिए राइस टाइम तो खैर उसको नहीं कहते, you will come up with some other time related to settling time. And then the bandwidth is close to omega c, which is an open loop property. देखो ना, ये दोनों क्या है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये दोनों क्लोज लूप प्रॉपर्टीज है, ठीक है. राइस टाइम closed loop property because this is your desired property. Similarly, from that you derive bandwidth. But omega c is an open loop property. So ये आपको डिजाइन में हेल्प करेगा कि अगर मुझे ये चाहिए, in other words ये चाहिए, तो omega c को मैं कहाँ रखूं, ठीक है. And these are some other plots which link open loop and closed loop. So for example, if I ask you, the x-axis has phase margin, which is a closed loop property. Yeah, it comes from which requirement? From overshoot requirements. Yeah.
आपकी जो ओवरशूट रिक्वायरमेंट है उससे आपको पीएम मिलेगा। सिमिलरली, और ये नजर भी आ रहा है ना कि नहीं, ये मैंने उल्टा बता दिया ना, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। क्लोज लूप रिक्वायरमेंट ये नहीं है, क्लोज लूप रिक्वायरमेंट ये है ओवरशूट और ये दोनों, ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम of the complementary sensitivity function, which is important for tracking response. And this is the maximum for disturbance rejection. Yeah. So these three are connected with something which is the open loop property. Yeah. ये ओपन लूप मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये कैलकुलेट करते हैं किससे, या फिर या नाइक्विस्ट प्लॉट से या बोडे प्लॉट से, और दोनों हम किसके लिए प्लॉट करते हैं, ओपन लूप के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मुझे फेज मार्जिन ये चाहिए या ये दोनों ये चाहिए तो मुझे अगर ओवरशूट इतना चाहिए या ये दोनों इतने चाहिए तो मुझे फेज मार्जिन इतना चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करें कि यहाँ पे फेज मार्जिन कनेक्टेड है किससे, जीटा से, ठीक है ना। So the same phase margin is also connected with zeta, but because zeta is connected to overshoot, yeah, and all those other things like Tmax and Smax, तो हम ये zeta को बिल्कुल सीन में से निकाल सकते हैं. We can directly connect PM to these, yeah. बीच में basically zeta यहाँ पे understood है. इस तरह आप कहते हैं ना implicit. zeta पे dependence दोनों की है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज वगैरह ठीक है। अच्छा, सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। और यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि द टेक्निक वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स रिक्वायर दैट वी आर डीलिंग विद मिनिमम फेज सिस्टम। तो ये नॉन मिनिमम फेज सिस्टम जो है ना वो काफी टेढ़े से हैं और उसकी जो टेक्निक्स है वो एडवांस्ड है। वो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू डील विद मिनिमम फेज। तो actually what Bode did, he discovered gain phase relationship. What it means is that the gain and phase are not independent. Yeah, if you know the gain you can calculate the phase, if you know the phase you can calculate the gain. We have not been doing this so far क्योंकि आप याद है हम ट्रांसफर फंक्शन से स्टार्ट करते हैं अभी तक जो हमने किया है, और हम इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं और हम इसका फेज करते हैं, याद है आपको। और ये दोनों हम अलग अलग करते हैं, and we never use this relationship. But what Bode discovered is that if you know one of them, you can automatically plot the other from that if the system is minimum phase. ये बहुत जरूरी है, तो नॉन मिनिमम फेज के लिए नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मिनिमम फेज पे फोकस करें इनिशियली एंड होपिंग दैट वी विल हैव सम ट्रिक एट द एंड फॉर नॉन मिनिमम फेज, वो बाद में देख लेंगे। सो यू कैन ओनली फोकस ऑन वन ऑफ दीज प्लॉट्स, इधर गेन और फेज, ठीक है। तो अभी अगर आप पढ़ लें, for minimum phase systems the gain phase relationship is unique, ठीक है, which means that phase response can be inferred from the gain response or the other way around. Gain response can be inferred from the phase response. Now we don't want to get into the math. If you want to look at the mathematical relationship, of course it's based on CVT, and if it was a course of CVT I would have explained it to you, but it's complicated. Okay, I don't want to get into the detail, but there is one thing which we need to notice and that will help us. Okay, you can compute it numerically, yeah, there are packages, but what is easy is that, so near the breakpoint you have a problem, ठीक है। ब्रेक पॉइंट आपको पता है ना, जहां पे पोल होता है या जीरो होता है, ठीक है। सो ब्रेक पॉइंट से अगर आप थोड़ा सा अवे चले जाएं, अवे फ्रॉम ब्रेक पॉइंट्स, द रिलेशनशिप इज वेरी सिंपल एंड दिस इज व्हाट वी विल नीड टू नो। अगर हमें ये समझ आ जाए बगैर मैथ के, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि ब्रेक पॉइंट से अवे जो है ना हम इसको अप्लाई करें। अब इसको आप और से पढ़ लें। This is actually the gain phase relationship. So when the slope of the magnitude response, you know what that means, yeah? अब पता है मैग्नीट्यूड प्लॉट जब आप करते हो उसका स्लोप होता है,
और अगर वो स्लोप इफ इट परसिस्ट्स एट ए कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि आप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए रीजन वेयर द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स has a constant slope. It either stays like that or like that or like that, yeah, but slope remains constant. और let's say वो slope इतना है, which means it's a multiple of 20 dB per decade. अच्छा, ये before I move on, कोई मुझे बता सकता है कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, n times 20 dB per decade? What is the reason? इसमें ये d decade किस चीज का होता है? ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस का होता है, ठीक है, यहाँ पे decade होता है, और dB किस पे होता है? मैग्नीट्यूड का। तो अब हमें पता है कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 0 की वजह से आ रहा है, there was some zero and it gave you this, और अगर ये -1 है तो फिर क्या होगा, मे बी देयर वाज अ पोल, ठीक है। तो बुक में अक्सर इसके ऊपर -1 और +1 लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली आई मीन जस्ट टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू +1, n इज इक्वल टू -1, लेकिन एक्चुअली स्लोप क्या है, बुक में अगर आप इसको और से पढ़ेंगे तो उसमें इसने 20 dB लिखा भी नहीं है, ये नहीं लिखा उसने। उसकी वजह ये है कि उसने लैंग्वेज डिफरेंट चेज की है, वो ही इज नॉट यूजिंग दिस dB per decade thing, he is just using another language, but I think it is much easier for you to understand this particular language where we express the slope, क्योंकि अभी तक हम जब भी स्लोप की बात करते हैं हम dB per decade की बात करते हैं, ठीक है ना। so it's a good idea to learn it this way. So if it's n times 20 dB per decade, and n can be positive or negative, yeah, it will be an integer, of course, +1, -1, +2, -2. For approximately a decade of frequency, इसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ थोड़ी रेंज के लिए नहीं है, एटलीस्ट एक डेकेड जो है ना, 1 decade, 1 multiplication by 10 फ्रीक्वेंसी एक्सेस पे, उस दौरान तक ये चेंज ना हो, ठीक है, स्लोप चेंज ना हो, then what happens, the gain phase relationship is very simple. The phase is simply n times 90 degree. और आपको ये इवन याद भी होगा कि ये n इसी n से आ रहा है, और हमें पता था कि 20 dB per decade हमें कितना फेज देता है। So it's a kind of thing we already know, but we knew it just by observation, by looking at many plots. What Bode does, actually he proved it mathematically. तो ये आपको अभी अगर आप नोट कर ले, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास 20 dB per decade है, इसका मतलब ये है कि there was a single pole or a zero, depending on whether it's plus or minus, तो हमें उसमें फेज में भी +-90 मिल जाता। तो बेसिकली it's kind of a summary of what you have been observing. The only thing now is that it's a theorem, so you can trust it, okay? नॉर्मली जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से रूल नहीं बनता, so ये एग्जाम्पल से रूल नहीं बनाया बोर्ड ने, he proved it mathematically, and you can verify this relationship, yeah, for minimum phase system. Maybe we should go back and just verify it in some of the plots, तो ये आपको पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताए कि ये जो लाइन है, व्हाट डज इट सजेस्ट, कि आपका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ओवर दिस रेंज, एंड आई थिंक दिस इज मोर देन अ डेकेड, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, द स्लोप परसिस्ट्स कांस्टेंट। अच्छा, अब ये बताएं ये क्या कितना स्लोप है, ये कितने डेकेड्स हैं, ये बताएं मुझे सर। ऑलमोस्ट 2 है। अच्छा, और ये जंप कितना है इसका रफली? जंप कितना है ये? अगर आप उसको यहाँ देखें ना, यहाँ से अगर आप इसको देखें, इधर से शुरू हुआ है और इधर पहुंचा है, तो ये तकरीबन 3 dB है, ठीक है, 3 dB, और ये यहाँ से भी आपको नजर आना चाहिए, एस क्यूब था ना इधर, बट इवन इफ दिस वाज नॉट देयर यू कैन नोटिस दिस। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्लोप क्या है, -3 dB पर डेकेड। बुक में वो क्या लिखेगा, n इज इक्वल टू -3, वो पर डेकेड नहीं करना चाहता। अच्छा, और
यहाँ पे स्लोप कितना है और ये कितना वो है, आप कह सकते हैं कि दिस इज फ्रॉम 10 टू, या क्योंकि आगे भी जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक डेकेड तक है, ठीक है, बल्कि ज्यादा भी है, ज्यादा है, तो ये भी आप कर सकते हैं कि दिस इज नियरली, ठीक है, नियरली वन वन डीबी पर डिकेट, -1 dB पर डिकेट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हाउ कैन यू इन्फर द फेज फ्रॉम हियर। हमने वहां पे क्या देखा था कि इस -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 90। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे फेज नियरली कितना है इस रीजन में, -2 से, -2 कैन यू सी दैट, यस सर। और यहाँ पे चूंकि -1 है तो -1 टाइम्स 90, -90, तो अब यहाँ देखिए इस रीजन में फेज कितना है अप्रोक्सीमेटली। -90। अब यही चीज अगर आप ब्रेक पॉइंट पे अप्लाई करें तो ये आपका सिंपल रूल यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके लिए आपको फिर वो पूरा मैथ चाहिए और वो मैटलैब कंप्यूटेशन वो सारा वो, आई मीन यू नो इट इज कैन बी डन। और बोर्ड गेन, रिमेंबर बोर्डे जो हम कहते हैं कि बोर्डे ने थ्योरम प्रूव किया था, तो उसने सिर्फ ये सिंपल केस नहीं किया था, ही टोल्ड अस हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो वो मैटलैब कर लेगा, वो इशू नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये इनफ है, हम एक और एग्जांपल कर लें, आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि अप्लाई किधर करना है, ब्रेक पॉइंट के आसपास नहीं, ठीक है, ब्रेक पॉइंट से आप दूर हो, ये फर्स्ट कंडीशन है, और दूसरा ये है कि द स्लोप मस्ट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट अ डेकेड। ये नहीं है कि, आपको याद है हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें स्लोप बहुत जल्दी चेंज हो जाता था, याद है आपको। अब देखिए ये है ना, इसमें क्या है, इसमें नोट करें, इसमें बहुत कम जगह पे स्लोप चेंज हो जाता है, इसको डेकेड नहीं मिल रहा पूरा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे भी था, याद है आपको, यहाँ पे ये तो ठीक है कि ये है, लेकिन ये देखो ना, ये बहुत जल्दी जल्दी वो स्लोप्स चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो 1 डेकेड वाली रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, यहाँ पे भी आप अप्लाई ना करें वो रूल, ठीक है। So let's get to how can we use this concept. Now we can use these concepts to come up with a strategy of controller design and frequency domain, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने सबसे पहले, मैं कुछ चीजें आपको रिमाइंड करूं कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में, इस चैप्टर के स्टार्ट में वी अंडरस्टूड ए सेकंड ऑर्डर रिस्पांस, ठीक है, जो टिपिकल हम सेकंड ऑर्डर लिखते हैं ना, स्क्वायर्ड प्लस 2 जीटा ओमेगा, वो सारा स्टफ, और उसके लिए हमने नोट किया था कि हमने बैंडविड्थ डिस्कवर की थी कि बैंडविड्थ वाज रिलेटेड टू राइज टाइम, या or maybe rise time was related to bandwidth. So uh, 2 2.2 divided by bandwidth was nearly equal to rise time. Do you remember that? And it was true for both first order and second order systems. तो एक बात तो तय है कि बैंडविड्थ राइज टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, और चूंकि डिस्टर्बेंस रिजेक्शन वाला बैंडविड्थ भी इसी से क्लोज है, तो अगर हमें राइज टाइम पता चल जाए तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा क्लोज नहीं है, और इन दोनों का ताल्लुक किससे है, दे आर बोथ क्लोज टू ओमेगा सी, ये एक चीज हो गई। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि एम पी और वो जो है ना टी मैक्स, एस मैक्स मैग्नीट्यूड्स, दे आर ऑल रिलेटेड टू जीटा, एंड जीटा इज रिलेटेड टू फेज मार्जिन। तो अब देखो ना कि इसमें ओमेगा सी ओपन लूप प्रॉपर्टी है और फेज मार्जिन ओपन लूप प्रॉपर्टी है। सो विल नाउ कंसोलिडेट अबाउट दिस। सो अगर आप इस टेबल को समझ जाएं तो फिर आपको स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी। इस टेबल में आपको क्या नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये ट्रांजिएंट प्रॉपर्टीज है क्लोज लूप सिस्टम्स की, और ये स्टेडी स्टेट है। तो अब ये सारी चीजें आपने नोट किया है कि, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टीज ओपन लूप के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, बट दैट वुड बी अ यूजलेस एक्सरसाइज, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, क्लोज लूप की, तो उनको ओपन लूप के लिए डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं है। हाँ, फायदा था चैप्टर 3 में। क्यों, क्या फायदा था चैप्टर 3 में, बिकॉज वी वर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, हम ही समझने के लिए सब कुछ कर रहे थे। अब हम समझने से बहुत आगे आ गए हैं,
डिजाइन में वी विल ओनली कंसिडर दिस प्रॉपर्टीज फॉर क्लोज लूप सिस्टम बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड। तो अब देखो ये क्या 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 आ रहा है यहाँ पे, ओवरशूट, ठीक है, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, और इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू दिस टू इफ यू आर डीलिंग विद सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब ये आप अगर नोट कर लें कि ये टाइम डोमेन है, ठीक है, एग्रीड, और ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, और ये क्या है ये बताएं, ये कौन सा डोमेन है? इट्स आल्सो काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, लेकिन ओरिजिनली आपको पता है ये एस डोमेन से आया था हमारे पास, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब चाहें तो आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी काउंट कर सकते हैं, बट इट बिलोंग्स टू बोथ, दैट्स व्हाई इट्स कनेक्टेड टू बोथ। So you can say that S domain is connected not only to the frequency domain but also to the time domain. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इन चीजों के लिए ओपन लूप में आप क्या इंश्योर करेंगे टू अचीव दीज प्रॉपर्टीज, व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू अचीव देम इन ओपन लूप? तो उसके पास आपके पास क्या क्या टूल्स है? एक है फेज मार्जिन और गेन मार्जिन, ये दोनों आपको किस में हेल्प करेंगे बताएं, किस प्रॉपर्टी में? जीटा और जीटा का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ओवरशूट भी और ये दोनों भी, ठीक है। तो पी एम, इसलिए हमने जो पिछले प्लॉट्स देखे थे वहां पे पी एम जो था फेज मार्जिन, वो आपको जीटा कप के प्लॉट में भी नजर आ रहा था एक्स एक्सिस पे, और इन दोनों में भी आ रहा था। एक प्लॉट में आपको एम पी और ये टी मैक्स और एस मैक्स नजर आ रहे थे, और एक प्लॉट में जी नजर आ रहे थे। तो ये आपके जहन में मैपिंग होनी चाहिए कि जब भी मुझे एम पी या टी मैक्स इंप्रूव करना हो तो ओपन लूप में मेरे पास जो टूल है वो क्या है, वो फेज मार्जिन है। ऑल्दो हमने गेन मार्जिन अभी नहीं किया, लेकिन गेन मार्जिन भी स्टेबिलिटी के साथ साथ उसका रिलेशनशिप है। अच्छा, अब ये बताएं ये जो ओमेगा सी है, ये किस में हेल्प करेगा हमें? ये किस प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड है? बैंडविड्थ, और ऑफ कोर्स इसमें आप डिस्टर्बेंस रिजेक्शन भी शामिल कर दे, ठीक है ना। ये हमने बेसिकली स्टेप रिस्पांस जो है ना वो उसका प्लॉट किया है ट्रैकिंग के हिसाब से। तो डिस्टर्बेंस रिजेक्शन भी उसी में, और ऑटोमेटिकली ओमेगा एन भी इसमें आ गया, ठीक है। अब हम स्टेडी स्टेट में आते हैं। स्टेडी स्टेट में हमारे पास मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्टेडी स्टेट एरर की होती है, which can be steady state error, ट्रैकिंग एरर और डिस्टर्बेंस रिजेक्शन एरर, ठीक है, दोनों के फॉर्म में। तो उसमें आपने नोट किया है कि आपके पास मेनली यही फंक्शन आपको चाहिए होता है, सेंसिटिविटी फंक्शन एट जीरो। ऑफ कोर्स अगर if you want this to be small, yeah, तो you would also like the other one to be large, और लार्ज का मतलब क्या है कि इट शुड बी क्लोज टू, ये आपको याद है ना कि अगर आपको ये जीरो चाहिए तो दिस हैज टू बी इक्वल टू वन। अच्छा, और इनके लिए आपके पास ओपन लूप में क्या है, आपके जो कांस्टेंट्स होते हैं, क्या जो एरर कांस्टेंट है, के पी के बी, बिकॉज दे वी लाइक टू कैलकुलेट देम फ्रॉम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी टाइम्स डी, आपको याद होगा हम उसी से ही कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपके पास दिस इज द लैंग्वेज यू यूज इन ओपन लूप, एंड दिस इज द लैंग्वेज यू यूज इन क्लोज लूप। अब इसी टेबल को, इसमें कोई क्वेश्चन है बिफोर आई मूव ऑन? ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप कह लें कि एबीसी, अगर आपको अल्फाबेट नहीं आते तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सो दिस इज काइंड ऑफ द अल्फाबेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। और अल्फाबेट में आपको जिस तरह वहां पे पता होना चाहिए कि लोअर लोअर केस कौन से है और अपर केस कौन से है, या वोवल कौन से है और कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे भी ओपन लूप और क्लोज लूप, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल क्लोज लूप समझे तो यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द होल फिलॉसफी, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज हाउ यू विल सी द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। स्टेप रिस्पांस आपका अ, इसी इसी तरह की एक रीजन आपको दिया जाएगा, और इसको हम टिपिकली कहते हैं एनवेलप। सो स्पेसिफिकेशंस विल कम इन द फॉर्म ऑफ एनवेलप,
कि ये इस बैंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इस बैंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज टाइम डोमेन, ठीक है। अब इस टाइम डोमेन में आपके पास क्या आ रहा है? पीक ओवर शूट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ठीक है। इनको आप जब ट्रांसलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एंड बिकॉज वी वांट टू स्पेसिफाई थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ओपन लूप, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो एनवेलप है ये भी ओपन लूप का हो। क्लोज लूप तो हमने डिजाइन नहीं किया ना, तो उसका डिस्कस करने का फायदा क्या कोई नहीं है। अब इसमें ये आपने पहले ये चीज देखी है पहले, एल, ये रूट, ये चैप्टर 5 में था, इस क्या मतलब होता था, याद है आपको? एल, if you remember, it included the constant as well as the plant and as well as any other um, dynamics of the controller, ठीक है, इसको हम एल कहते थे। इसका मतलब ये है कि दिस यू कैन थिंक ऑफ इट एज द लूप गेन, ओपन लूप गेन है। अगर आप चाहें तो आप इसको लिख दें कि एल इज इक्वल टू के जी डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है ये वाला, और इसका मतलब क्या है इन इन रेड लाइंस का, कि यहाँ पे आपने नहीं होना, ठीक है। आपका लूप गेन लो फ्रीक्वेंसीज में, दीज आर लो फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, बताएं। मतलब यहाँ पे कोई आपने कोई रिक्वायरमेंट दी होगी ना कि इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये नीचे आ गया तो इसका क्या मतलब होगा? हुँ? इसको समझने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि यू रिमेंबर, हमारे पास एक एस था और एक टी था। तो टी का क्या फॉर्मूला था? के जी डी, सो एल ओवर 1 प्लस एल, याद है आपको? Yes, sir. और एस का क्या था? 1/1 + L. अच्छा, हमें इस रीजन में बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी, अच्छा, और इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट किया, चैप्टर 4 से थोड़ा सा डिफरेंट है। चैप्टर 4 में हम सिर्फ बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट की, और स्टेडी स्टेट का मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो है, ठीक है। यहां पे हम सिर्फ स्टेडी स्टेट की बात नहीं कर रहे, वी आर स्पीकिंग ऑफ ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब ये है कि इसमें स्टेडी स्टेट तो आया ही आया है, और इसमें आपके पास सारे साइनसॉइड्स आ गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है ना। तो यू वांट द सिस्टम टू बी ट्रैकिंग all these frequencies up to a bandwidth, क्योंकि हमें पता है कि this will ultimately be related to bandwidth, ठीक है। So you want to track not only, for example, step, ramp and so on, but you also want to track sinusoids and sinusoids of different frequencies and up to a maximum frequency, और उसी को हम bandwidth कहते हैं, ठीक है ना। Similarly, we want to reject disturbances with a range of frequencies up to some bandwidth, तो वो डिस्टर्बेंस रिजेक्शन बैंड होगा, एंड दे आर बोथ क्लोज टू ओमेगा सी। तो इसका मतलब ये है कि लो फ्रीक्वेंसीज में अगर मैं इधर आ जाता हूँ, लो फ्रीक्वेंसीज में, तो लो फ्रीक्वेंसीज में यू वुड लाइक दिस एल टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। क्यों? उसका ताल्लुक इससे है कि व्हेन दिस इज लार्ज, अब देखो ना, आप नोट करिए, जब इसका मैग्नीट्यूड लार्ज होगा तो ये 1 को डोमिनेट करेगा, ठीक है, and this will be, the magnitude of this will be close to 0, या, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज एक्सट्रीमली लार्ज। और इसके साथ क्या होगा? when L is extremely large, this will be close to, Infinity. नो, ये L और L सेम होंगे ना, 1 की 1 को ये डोमिनेट करेंगे तो L और 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये क्या देता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब परफेक्ट ट्रैकिंग है या नहीं है, कि क्या आपका ट्रैकिंग रिस्पांस फ्रॉम रेफरेंस टू आउटपुट नियरली 1 है, और इसका क्या मतलब है? परफेक्ट डिस्टर्बेंस रिजेक्शन है। तो परफेक्ट ट्रैकिंग, परफेक्ट डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसलिए ये लिखा हुआ है। आप सोचेंगे कि यहाँ मैंने जीरो क्यों नहीं लिखा हुआ, तो इसका एक और भी ट्रिक है कि आप जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन
ये हमें हेल्प करेगा कि because one is ignored here, so you can think of it as 1 over L. तो मैंने basically 1 over लिखा है. And because L is large, so 1 over L is also small. तो basically मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है. So that is the reason. अब इसको प्लॉट ऊपर देख ले, ठीक है. That is the reason if you want good tracking, ये मैं देखो ना, good tracking and good disturbance rejection for a range of frequencies, yeah, till omega c, ठीक है. तो which is of course close to bandwidths, both the two types of bandwidth. You for that will require an open loop gain as large as possible. इसलिए हमें इसको एक खास हद से ऊपर रखना है. अब ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये कि जब भी हमें डिजाइन में एरर रिक्वायरमेंट्स दी जाए कि स्टेडी स्टेट एरर इतना होना चाहिए, ठीक है ना, एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट इतना होना चाहिए, पोजीशन कांस्टेंट इतना होना चाहिए, वो सारी चीजें ट्रांसलेट होंगी इस रीजन में. और इस रीजन में वी वुड लाइक फॉर ए लूप गेन दैट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. और आप अगर इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको याद है कि चैप्टर 4 में परफेक्ट ट्रैकिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता था? इंटीग्रल चाहिए होता था कि नहीं? इंटीग्रल, हाँ. और इंटीग्रल का गेन क्या होता था लो फ्रीक्वेंसी पे? 1 over s ना. तो 1 over s approaches when s is approaching 0. तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल विल गिव यू एन इन्फिनिटली लार्ज वैल्यू फॉर लो फ्रीक्वेंसी. तो ये बेसिकली वही कर रहा है जो हम यहाँ चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंटीग्रल से बाहर जा रहे हैं क्योंकि we need all the frequencies, not just the DC. Is this clear now? Hmm? Uh, ये ठीक है. अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाएं. इसके मैं बाद में आता हूँ. ये रीजन मैंने ऊपर क्यों शो किया हुआ है? Because you would like this open loop gain to be as small as possible at larger frequency. क्यों? क्योंकि larger frequencies में हमारे पास सेंसर नॉइज होता है, ठीक है, और सेंसर नॉइज को ट्रैक नहीं होता, उसको सप्रेस करना होता है. तो यू वुड लाइक दिस टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. आपको याद होगा उधर एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए. तो इफ दिस इज लार्ज, दिस हैज टू बी स्मॉल सो दैट this tracking transfer function is close to 0, so that you are not tracking the sensor noise, ठीक है. और ये इसलिए मसला नहीं कर रहा था कि डिस्टर्बेंस वैसे भी हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं होती, हाई फ्रीक्वेंसी पे नॉइज होता है और हाई फ्रीक्वेंसी अनमॉडल्ड और वो जो रोबस्टनेस वाली इश्यूज है. तो बेसिकली आप इसको बिल्कुल फ्लिप कर देना. तो जो यहाँ पे लार्ज होता है गेन, वहां पे हमें स्मॉल चाहिए होता है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हम नहीं आते फिलहाल, ठीक है. बिकॉज वी आर अस्यूमिंग मिनिमम फेज, तो मिनिमम फेज का मतलब ये है कि यूजिंग बोर्डे गेन फेज रिलेशनशिप, बोर्डे गेन फेज जो अभी हमने डिस्कवर किया, इसके स्लोप से हम ये इन्फर कर लेंगे कि हमारे पास ये फेज कितना होगा, ठीक है. और सिमिलरली इसके स्लोप से भी हम ये डिस्कवर कर लेंगे. तो हमें फेज यहां से क्लियर हो जाएगा. लेकिन आपको याद होगा कि फेज इज नेवर एन इशू एट लार्ज फ्रीक्वेंसीज एंड एट स्मॉल फ्रीक्वेंसीज. फेज सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है. क्रॉस ओवर का मतलब है कि एल इज नाउ क्रॉसिंग वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन. तो इस दौरान हमें क्या करना है? हुँ? इस दौरान हमने फेज पे नजर रखनी है कि जो फेज रिस्पॉन्स है, in this case we didn't care about the phase, in this case we didn't care about the phase क्योंकि here the feedback is negative, here the feedback actually is no feedback. And in this region you want to make sure कि आपका जो फेज है वो -180 के करीब ना आए.
तो आपने इससे ऊपर रखना है इसको। अब आपको याद आ रही है ना फेज मार्जिन वाली बात हम क्यों कर रहे थे? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फेज आपको -180 से अगर ऊपर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये स्लोप आपकी मर्जी का नहीं हो सकता। आप यहाँ पे तो स्लोप जो भी था ठीक था, यहाँ पे स्लोप जो भी था ठीक था। यहाँ पे अगर आप स्लोप को इंक्रीज करोगे, लेट्स से if you have a steep curve, तो what will happen to this phase? Recall Bode gain phase relationship. हम्म मैं आपको अगर दो एग्जांपल दे देता हूँ ना, कि इस रीजन में मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। लेट्स से एक में स्लोप है -20 dB पर डिकेड, और दूसरे एग्जांपल में क्या है, -40 dB पर डिकेड। दोनों में फेज क्या होगा बताएं? इस रीजन में, इसमें फेज कितना होगा? -90 है। और इसमें, -180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे फेज को माइनस मतलब आपने कंट्रोल करना है। फेज है, आई मीन -40 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपका फेज मार्जिन 0 हो गया। फिर समझ आ गई बात? तो आप अब देखो ना, हम सारी डिस्कशन अब गेन की ही कर रहे हैं। ये मिनिमम फेज का फायदा है कि हमारा गेन रिस्पॉन्स यहाँ पे लार्ज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, और यहाँ पे, और ऑफ कोर्स इसमें एक और भी है। इस प्लॉट से तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि परफेक्ट ट्रैकिंग के लिए इवन ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ये आपको ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट ट्रैकिंग, यू आर ओनली लुकिंग फॉर अ स्मॉल स्टेडी स्टेट एरर। क्योंकि देखो ना, ये स्लोप वो नहीं है, ये फ्लैट हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपको परफेक्ट ट्रैकिंग चाहिए, तो आपको याद होगा कि आपको इंटीग्रेटर वगैरह लगाना पड़ेगा। और इंटीग्रेटर की केस में ये यहाँ पे स्लोप क्या कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी अ नेगेटिव स्लोप। ये फ्लैट नहीं होना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट? मतलब अगर आपके सिस्टम में आपने इंटीग्रेटर रखा हुआ है, तो फिर ये इस तरह फ्लैट तो नहीं होगा ना, ये ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी, और आपने बेशक दो इंटीग्रेटर लगाए हो तो फिर और भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मर्जी है स्लोप, यू डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे फेज जो मर्जी है, यू डोंट, आपको उससे गरज नहीं है। ठीक है। यहाँ पे भी आप, यू वुड लाइक द स्लोप टू बी as negative as possible, because you want to get rid of this quickly। ठीक है ना? तो इसमें अगर ये फेज नीचे भी चला जाए, इस रीजन में आपने इस स्लोप को कंट्रोल करना है कि यू वुड लाइक अ स्लोप नॉट सो स्टीप। ओके। और one of the reasons things are important here, because it is at this frequency in the middle where both the sensitivity function and the complementary resistor they hit their maximum values। आपको याद है ये जो maximum value है, ये हमने पहले भी देखा था। Now I want you to make connections with this plot। उस टाइम पे शायद आपको ज्यादा क्लिक नहीं हो रहा था। अब आपको ये प्लॉट समझ आ रही है कि इन दोनों का पीक देखो ना, जब स्मॉल है फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज लार्ज एंड दिस इज स्मॉल, and both of these can be achieved with a loop gain that is small, sorry, that is large, yeah. If you keep loop gain very large, you will get this response and you will get this response। this is good for disturbance rejection, this is good for tracking। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टा है। You want your loop gain to be small, here, so that this is small and this is large, or this is exactly what you need for sensor rejection and sensor noise suppression। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे L जो है ना is near 1, क्योंकि that's why you call it crossover frequency, and it is near the crossover frequency that both T and S they hit magnitudes larger than 1। जो इसलिए हमें वो मैक्सिमम चाहिए ना, T मैक्सिमम और S मैक्सिमम। इसका मतलब है कि T मैक्सिमम और S मैक्सिमम का ताल्लुक किससे है? आपके रेजोनेंट पीक से है, और उसका ताल्लुक फिर आपकी स्टेबिलिटी से है, पीक ओवरशूट से। So that is why we need to be careful about the slope here to prevent phase response from getting near -180,
and that will prevent these two maxima to be within range, because this will ultimately be connected to आपका जो peak overshoot है, और ये दोनों कनेक्ट किससे, जीटा से। तो ये सारी मैपिंग आपके जहन में होनी चाहिए। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, क्योंकि दिस आई वुड से दैट दिस टू स्लाइड्स थ्री, खैर ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है। these two slides are very important. I would not say the most important, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं। this table and this slide and of course this table as well। आपको याद है हमने चैप्टर 4 में इस तरह का एक टेबल उधर भी हमने किया था, उस टाइम शायद आपको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। याद आ रहा है आपको कि चैप्टर 4 में इस तरह का एक टेबल था? Yes, sir. तो ये अभी अगर आप जाके उस टेबल को दोबारा देखें तो यू विल नाउ अंडरस्टैंड कि वो टेबल हमने क्यों दिया था। और उसमें आपको याद हो कि मेन चीज यही थी कि जो -1 पॉइंट है ना, जो अभी क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम कहते हैं -1 पॉइंट, ठीक है, और ना को स्टेबिलिटी भी -1 के अराउंड घूमती है, उसका रीजन बेसिकली ये सेकंड कॉलम है, ठीक है ना। वो सारी उस -1 की वजह से सारा हो रहा है। So of course you cannot memorize these two slides. You will have to get back to these slides over and जब जब भी आप फंसेंगे आप इन्हीं दो स्लाइड्स की तरफ आओगे, ठीक है। और बल्कि सिर्फ ये दो स्लाइड्स नहीं, आपने प्लॉट्स भी देखने हैं। ये वाले प्लॉट्स जो है ना, ये आपको बार बार यूज करने पड़ेंगे। जिस तरह मैंने रात को अनाउंसमेंट की थी ना कि जो फार्मूला शीट एक डॉक्यूमेंट है वो मैं अपडेट करता रहूंगा, और हर लेक्चर के बाद उसमें आप चेंजेस नोट करेंगे इंशाल्लाह। फाइनल में वही आपके सामने, ये सारे प्लॉट्स आपको फाइनल में मिलेंगे। सो अगर आपको समझ नहीं आई कि प्लॉट कैसे यूज करना है, सो यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। नाउ लेट्स गेट टू नाउ बिफोर आई गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक बात तो तय है कि आपको दोनों चीजें चाहिए। आपको ये भी चाहिए, क्योंकि आपको स्टेडी स्टेट एरर रिक्वायरमेंट भी होगी, और आपको ये भी चाहिए विच मीन्स के ओवरशूट की रिक्वायरमेंट। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप इसको इग्नोर करेंगे। आप चूंकि आपको दोनों चाहिए, तो जब भी आप इसको इंप्रूव करेंगे, अब आपसे अगर मैं पूछ लूं कि लेट्स से आपने स्टेडी स्टेट एरर को इंप्रूव करना है, और ये प्लॉट मैंने दिया हुआ है, ठीक है, और आप कहते हैं इसको मजीद इंप्रूव करो, तो आप इसके साथ क्या करोगे? इस what will you do to this curve so that L gets larger? L की यहाँ पे एक वैल्यू है ना, और लेट्स से आप चाहते हैं इससे मजीद बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ सिस्टम के साथ, बताएं। इमेजिन आपने ब्लॉक लगाए हुए हैं ना, ये आपके पास जी का ब्लॉक है, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये जी है, और आपने कंट्रोलर कोई नहीं लगा, आपने सिर्फ प्रोपोर्शनल गेन लगा दिया, ठीक है, और यही आपका एल है, ठीक है, यही आपका एल है। तो अब एल आपको यहां मिल गया, और आप कहते हैं यार नहीं, मुझे मुझे एरर, स्टेडी स्टेट एरर और मजीद इंप्रूव करनी है। तो व्हाट विल यू डू? विल यू इंक्रीज द गेन और विल यू डिक्रीज द गेन? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं विल आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2 और विल आई डिवाइड दिस बाय 2 if I want this to improve? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा ना कि यू वुड लाइक दिस टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल, सो यू वुड लाइक टू इंक्रीज द गेन, ठीक है। तो अब ये पूरा प्लॉट ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो फेज रिस्पांस को तो कुछ नहीं होगा ना, फेज रिस्पांस का गेन से कोई ताल्लुक है? यू आर नॉट इन चेंजिंग द फेज रिस्पांस, बट व्हाट विल हैपन टू दिस ओमेगा सी? बता सकते हैं मुझे, ये ओमेगा सी चेंज होगा या नहीं होगा? लेट्स से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको मैं डबल कर देता हूं, तो ये प्लॉट एरर जब आ जाता है, तो व्हाट हैपेंस टू ओमेगा सी? Increase or ओमेगा सी विल इंक्रीज। अच्छा, विच मीन्स कि ये जो आपने इसको दूर रखा था इससे ना, -180 से, ये आपका फेज मार्जिन था ना, था या नहीं था? तो इस फेज मार्जिन के साथ क्या होगा?
ये चेंज होगा या नहीं होगा? अब ये आपका इंपॉर्टेंट रीजन नहीं रहा, अब आपका ओमेगा सी इधर आ गया ना, तो अब ये कैलकुलेशन आप इधर करेंगे, इधर फेज आपका नीचे आ चुका है, ठीक है, तो आपका फेज मार्जिन क्या होगा? डिग्रेड होगा। समझ आ गई? इसके बारे में सोच के मुझे बताया कि डू यू फॉलो दिस और नॉट। Follow the sequence of reasoning, okay? An improvement in steady state performance will tempt me to go for a larger gain, yeah? And a larger gain which will shift the frequency to the right, which will make the important region for phase margin also to the right, और वहां पे ये फेज चूंकि आपको पता है नीचे आ रहा है ना, देखो ना, ये फेज आपका ये जो ओवरऑल गेन रिस्पांस है उसको नीचे आ रहा है, स्लेप सिर्फ यहाँ पे उसका ठीक था ना, यहाँ पे तो उसका स्लोप स्टीप हो रहा है ना, तो स्टीप स्लोप का मतलब ये है कि फेज भी नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो आपका जो मार्जिन है वो कम हो गया, सो द फेज मार्जिन विल बी डिग्रेडेड, दैट इज द रीजन वी हैव अ ट्रेड ऑफ, कि हम कभी भी, अब आपको, अब इसको चैप्टर 4 से कनेक्ट करें, हम बार बार क्यों कहते थे कि सिर्फ प्रोपोर्शनल गेन से आप इन दोनों में से एक चीज इंप्रूव कर सकते हैं, दोनों नहीं। सो कैन यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? अच्छा, अब इसका दूसरा वर्जन देखें, ठीक है, इसी का दूसरा वर्जन देखें। लेट से मैं गेन को डिक्रीज करता हूं, वो जो k है जिसकी वजह से आपके पास ये l आया है, मैं उसको किससे डिवाइड करता हूं? 2 से। व्हाट विल हैपन टू दिस प्लॉट? इट विल कम डाउन, या? Yes, sir. तो किस चीज पे इसका अच्छा असर होगा, किस पे बुरा होगा, ये बताएं मुझे। So व्हाट विल फेस इंप्रूव? मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा फेज मार्जिन विल इंप्रूव, और क्योंकि अब ओमेगा आप सी यहाँ पे डिक्रीज हो देख, जाएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट एरर रिक्वायरमेंट जो है ना, वो आपकी वो स्टेडी स्टेट एरर डिग्रेड है, तो दोनों तरफ आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अच्छा अब ये देखें ना, हमने फेज मार्जिन इंप्रूव कर दिया, इसका मतलब कि ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी हमने इंप्रूव कर दी, स्टेडी स्टेट एरर को लेट्स से हम कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है, कि आई एम ओके विद स्टेडी स्टेट एरर। तो आपको एक तीसरी चीज नजर आ रही है, इन दोनों चीजों में हमने वो चीज डिस्कस ही नहीं की है कि ओमेगा सी जब यहां पे आता है तो और क्या, किस चीज पे इंपैक्ट आता है उसका। हम यहाँ पे सिर्फ दो चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस और एक स्टेबिलिटी, तो एक तीसरी चीज भी तो होती है ना, वो क्या है? ट्रांजिएंट में दो चीजें होती है ना, ट्रांजिएंट में, ट्रांजिएंट बिहेवियर में दो चीजें होती हैं, एक आपका स्टेबिलिटी होती है, ओवरशूट, और दूसरा क्या होता है? राइज टाइम और सेटलिंग टाइम, याद है ना? तो अब जब ओमेगा सी स्मॉल हो जाएगा तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बताएं। और इन दोनों को कनेक्ट कौन सी चीज कर रही है? मैंने बताया था, वो क्या है? ओमेगा bandwidth. So now follow this reasoning. A shift in crossover frequency to the left means that you are decreasing the bandwidth. When you are decreasing the bandwidth, you are decreasing the rise time. तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। आपने सिर्फ फेज मार्जिन इंप्रूव किया, बट यू लॉस्ट टू थिंग्स, you have a degraded steady state performance, and you have a slower system, you have a slower system। और पिछले में क्या था? पिछले में we increase the gain, तो उससे हमें स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, ठीक है। दिस वेंट टू द राइट, तो क्या इंप्रूव होगा इससे? फेज मार्जिन डिग्रेड हो गया, ठीक है, लेकिन इंप्रूव और क्या चीज हो गई? बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ इंप्रूव का मतलब यह है कि यू विल हैव अ फास्टर सिस्टम, यू विल हैव अ फास्टर रिस्पॉन्स। तो मतलब हर चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे।
अच्छा, यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि प्रोपोर्शनल से आप सारी चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर ए स्ट्रेटजी where we use one type of controller for this thing, और हमें पता है कि इसमें हमें कौन सा कंट्रोलर हेल्प करता है, ये आप जहन में बिल्कुल याद रखें। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमेशा हमें दो चीजें देगा, ये आप जहन में रखिए। फर्स्ट, इट विल गिव अस अ फास्टर सिस्टम, it will improve the bandwidth, and it will also improve the steady state or low frequency behavior, which means steady state performance. और यहाँ के लिए we do not want to rely on proportional controller, क्योंकि proportional को हमने उसके लिए यूज किया है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सजेस्ट करें किस टाइप का चेंज चाहिए हमें। हमें वो चीज चाहिए जो सिर्फ फेज को इंप्रूव करे, गेन को ज्यादा ना छेड़े। तो उसके लिए आपको कौन सा कंट्रोलर चाहिए, ट्राई टू रिकॉल। कौन सा कंट्रोलर आपका फेज इंप्रूव करता है? बोर्डे प्लॉट्स हमने जितने भी देखे उसमें बताया ना, बोर्डे प्लॉट्स में फेज डिक्रीज किससे होता है और इंक्रीज किससे होता है, और हमें इंक्रीज चाहिए ना। तो फेज इंक्रीज के लिए हमें जीरो चाहिए या पोल चाहिए? 0. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें जीरो चाहिए। तो जीरो का मतलब यह है कि वी विल गो फॉर डेरिवेटिव कंट्रोल, विल गो फॉर। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि हम पीडी कंट्रोलर क्यों यूज करते थे। पीडी कंट्रोलर में P was doing this job, and at that time you could not understand it क्योंकि वो frequency domain का चैप्टर नहीं था, and D was doing this job, and चूंकि ये दोनों independent है, तो you get both the things. You not only improve your phase margin, you also improve your steady state performance, and you get a faster system. अब समझ आ गई बात? So that actually now leads us to inquire the lead compensator. आप कहेंगे कि हम पीडी को क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे, आपको पता है पीडी रियलाइजेबल नहीं है, इट इज नॉट रियलाइजेबल, ठीक है। तो बुक में उसने पहले पीडी को एक्सप्लोर किया हुआ है, बट आई डोंट थिंक दैट्स देयर इज अ पॉइंट। वो मैं वो एग्जांपल भी स्किप कर रहा हूँ, और वो जो पूरा सेक्शन मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग समथिंग व्हिच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, ठीक है। हमने बड़े प्लॉट उसके किए हुए, वो आप देख लें दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि चूंकि बोर्डे प्लॉट आपको ज्यादा ज्यादा आसानी से नजर आता है, तो इस बोर्डे प्लॉट को देखें लेफ्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास कितने जीरोज है और कितने पोल्स है। अब दिस इज ओनली द कंट्रोलर, ठीक है, ये सिर्फ कंट्रोलर की बात हो रही है, कंट्रोलर का गेन, कंट्रोलर का फेज। तो देख के आपको बता सकता है कि इसमें कितने जीरोज और कितने पोल्स है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये जो चेंज ऑफ स्लोप है, सर 1 0 एक जीरो, और वो फेज भी इंप्रूव हो गया ना इधर, जी, और एक पोल है सर। और एक पोल इधर आ गया क्योंकि वो वापस स्लो हो गया, सॉरी स्लोप फिर कम हो गया, और ये फेज फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या है आपके, दिस इज वन ब्रेक पॉइंट एंड दिस इज द अदर ब्रेक पॉइंट, और ये बीच में वो मैक्सिमम फेज है यहाँ पे जो आपको मिल रहा है। नाउ this system, this controller is actually giving you this extra phase lead. तो ये अगर आपका फेज मार्जिन ठीक नहीं है, तो आप ये अपने सिस्टम में लगा दें, तो वो सिर्फ इस जगह पे फेज को इंप्रूव करेगा, ठीक है, बाकी जगहों पे नहीं करेगा। लेकिन इधर देखिए, पहले मैं चाहता हूं कि आप इसमें देखें ना, ये गेन प्लॉट को देखिए, फार्मूले के बाद में जाते हैं। इस वन का क्या मतलब है कि आपका जो कंट्रोलर है उसका गेन वन है लो फ्रीक्वेंसीज में। तो वन का मतलब यह है कि आपने जो बाकी सिस्टम आपने लगाया हुआ है ना, अगर आपने कोई प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाया हुआ है या कोई आपका प्लांट है जीएफएस, ये उसको नहीं छेड़ेगा, वन टाइम्स एनीथिंग इज दैट थिंग। तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये कंट्रोलर कुछ भी नहीं कर रहा, ना फेज को चेंज कर रहा है, फेज क्या है, जीरो, और गेन क्या है। सो बेसिकली इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एट लो फ्रीक्वेंसी। डू यू फॉलो दिस नाउ? मतलब आपने जहन में रखना है कि आपके पास एक जीएफएस है, और लेट्स से आपके पास आपने के भी लगाया हुआ था, और अब आपने ये कंट्रोलर लगा दिया, ये कंपेंसेटर,
ठीक है ना। देखो ना इसमें के नहीं है, हमने इसमें के नहीं किया हुआ, देखो इसकी इसका डीसी गेन क्या है, 1 + 0 1 + 0, तो जस्ट इसका मतलब ये है कि ये इस के को आपने लगाया था किसके लिए, याद है, स्टेडी स्टेट एरर को इंप्रूव करने के लिए और बैंडविड्थ के लिए, दो चीजों के लिए आपको एक क्या चाहिए होता है ना। Try to connect it with the previous slide. Okay, we would have a proportional controller to improve our steady state error or bandwidth or both. And now we want a compensator which is only meant to give me this extra phase without changing the benefits of K. तो K ने जो मुझे गेन दिया था वो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए इसका गेन भी 1 है लो फ्रीक्वेंसी पे, और क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे हमें वो दो चीजें दे रहा था ना, और फेज इसका 0 है, तो नीदर आई वांट टू चेंज द फेज। अब बेसिकली जब मैं गेन चेंज नहीं करूंगा तो फेज भी नहीं चेंज होगा, मिनिमम फेज सिस्टम का ये कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब ये बताएं हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, पहले प्लॉट को देखें। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये इसका गेन क्या है, 1/अल्फा, और अगर आप चाहें आप इसे देख सकते हैं। इसमें आप एक और चीज भी नोट करें कि this alpha has to be less than 1 if you want this to be a lead compensator. lead का मतलब यह है कि अल्टीमेटली मुझे ज्यादा फेज एड पॉजिटिव फेज दे देगा। तो कैन यू टेल मी कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 क्यों होनी चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो ना इस फॉर्म में शायद आपको क्लियर ना हो, लेकिन आप इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे, देखो ना s+something, तो ये आपका 0 है और ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, which ओमेगा डी विल बी 1/TD, ठीक है, और ये आपका पोल हो गया। तो अब देखो आप इस प्लॉट के लिए 0 पहला होना चाहिए या पोल पहला होना चाहिए, पहले क्या लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होना चाहिए, इधर 0 क्या होना चाहिए, 0, तो डब्ल्यू डी इधर होना चाहिए ओमेगा डी, और यहाँ पे आपका ओमेगा डी/अल्फा है, तो इसका मतलब कि अल्फा हैज टू बी लेस देन 1, वरना ये और आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि इस फॉर्म में, अच्छा अब अल्फा इज लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ये 1 और अल्फा क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे, रिमेंबर एस इज लार्ज, सो दिस इज डोमिनेटेड बाय एस इज कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद 1 और अल्फा। और अगर आप ये मैथ पूरा कर लेना, तो यहाँ पे जिस तरह 1 है और यहाँ पे जिस तरह 1 और अल्फा है, तो ये जो मिड फ्रीक्वेंसी है इस पे इसकी वैल्यू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर रूटेड है। ये अगर आप चाहें तो आप डिराइव कर सकते हैं, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कैन इवन डिराइव समथिंग एल्स व्हिच आई हैव नॉट डन सो फार, और वो ये है कि चूंकि हमें पता है कि फेज अल्टीमेटली इधर कम फेज होता है और इधर वापस अपनी फेज पे आ जाता है, तो बीच में आपका फेज मैक्सिमम होगा, और ये बीच का मतलब ये है कि चूंकि लॉगरिथमिक स्केल है, क्या है, लॉगरिथमिक स्केल में ये जो मिडल है ये इन दोनों का एरिथमेटिक मीन नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्या होगा, इन दोनों का लॉगरिथमिक स्केल में जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान आपको कुछ चाहिए वो लॉगरिथमिक वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसका मतलब है कि दिस थिंग व्हिच इज ओमेगा मैक्स, क्या, लेट्स से इसको मैं ओमेगा मैक्स कहता हूं। ओमेगा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ओमेगा मैक्स का मतलब है कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम फेज मिलेगा। तो इट इज ओमेगा डी ओवर अल्फा, और दोनों का क्या, स्क्वायर रूट, तो ओमेगा डी डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर रूटेड। अब आपको समझ आइए मैंने क्यों लिखा हुआ है। और इस दौरान आप इसका इवन ये जो मैग्नीट्यूड है 1 से 1 और अल्फा बीच में, इसका भी दोनों का क्या है, इंटरेस्टिंगली ये भी इनका मिडल है और ये भी लॉगरिथमिक स्केल है, सो दिस विल आल्सो बी ए ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो ना ज्योमेट्रिक मीन आप इसका ले ले 1 1 और अल्फा एंड देन स्क्वायर रूटेड। तो बेसिकली इन दोनों के लिए आपको कोई मैथ चाहिए नहीं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस शुरू कर लें, सो यू गेट बोथ दीज वैल्यूज जस्ट बाय कॉमन सेंस। हाँ ये जो फेज है मैक्सिमम इसके लिए आपको थोड़ा सा शायद चाहिए, वो उसका भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इफ वी गो बैक टू वन स्लाइड, और उस स्लाइड से आप ये चाहें तो आप आराम से घर पे कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट दे दूंगा, ठीक है, आई एम नॉट डिराइविंग इट फॉर यू, बट इन केस सम ऑफ यू इज इंटरेस्टेड,
नहीं ये नहीं था, वो मिनिमम फेज और नॉन मिनिमम फेज का एक, हाँ ये आपको याद होगा ना कि एक इसमें मिनिमम फेज है, एक इसमें नॉन मिनिमम फेज है। लेट्स से नॉन मिनिमम फेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ देखो ना, ये बिल्कुल वही चीज है कि वन वन ओवर अल्फा और ये वो मैक्सिमम फेज है। डू यू एग्री कि ये बिल्कुल वही सिस्टम है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट है। तो आप इस डैश को इग्नोर कर दें, दिस इज आवर प्लॉट बेसिकली। तो इस प्लॉट में अगर आप गौर से देखें, इस प्लॉट में आपके पास किसी भी पॉइंट पे अगर आप फेज देखना चाहते हैं तो ओरिजिन ये है, तो ये आपका फेज हो जाएगा, ये आपका फेज हो जाएगा, मैक्सिमम फेज। तो मैक्सिमम फेज आपको कहां मिलेगा? कोई ये ज्योमेट्रिकल शेप बता सकता है मुझे कि ये फेज मैक्सिमम कब होगा? फॉर एग्जांपल यहां पे फेज कब होगा? जीरो, या यहां पे फेज कब होगा? जीरो। यहाँ पे इट विल बी समथिंग। तो अगर मैं इसको एक ड्रॉ करूँ ना, एक टेंजेंट, तो इस जगह पे फेज आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस ट्रायंगुलर शेप से आप वो फार्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो दैट इज फॉर द मैथमेटिकली ओरिएंटेड। लेट्स से आपने डिराइव कर लिया, तो 5x और अल्फा के दरमियान ये रिलेशनशिप है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू कैन गो फ्रॉम अल्फा टू 5x और फ्रॉम 5x टू अल्फा। बजाय ये दोनों फार्मूले याद रखने के या यूज करने के, आई प्रेफर टू हैव अ प्लॉट, जिस तरह हमने ओवरशूट और इस तरह प्लॉट किए हैं ना। तो 5x को अगर आप 1 और अल्फा के अगेंस्ट प्लॉट करो, आप चाहें तो अल्फा के अगेंस्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या इशू आएगा बताएं? अगर मैं इसको अल्फा 1 और अल्फा की जगह अल्फा करूं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी इस प्लॉट में? ये गेस कर सकता है? दिस प्लॉट विल नॉट बी कन्वीनियंट, क्योंकि फिर अब उसको इस प्लॉट को इस तरह लेफ्ट साइड पे शो करना पड़ेगा ऐसे, दैट विल नॉट बी कन्वीनियंट, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वी प्लॉट 5x अगेंस्ट 1 और अल्फा, क्योंकि हमें पता है अल्फा इज लेस देन 1, सो 1 और अल्फा की वैल्यू जो है ना। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपको जो भी 5x चाहिए, यहाँ पे आपको लेट्स से 60 डिग्री चाहिए, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए आपको अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा की वैल्यू ये होनी चाहिए। आपको 30 डिग्री चाहिए, अल्फा की वैल्यू 1 ओवर अल्फा की बेसिकली। एंड द गुड थिंग अबाउट 1 ओवर अल्फा की, ना सिर्फ आपको ये दे देता है, हमें ये भी पता है कि वही 1 ओवर अल्फा हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी है इधर। तो इट विल आल्सो टेल यू कि इसका वो हाई फ्रीक्वेंसी गेन कितना होगा। समझ आ गई बात? अब इसको देख के मुझे एक और चीज बताएं। मैंने यहां पे एक बात की थी इस प्लॉट में कि इफ आई इंक्रीज द गेन, या तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट टू दी राइट, याद है ना? यस सर। तो अब यहां पे आपने कंट्रोलर लगा दिया, कंपेंसेटर लगा दिया, ठीक है, और इस कंपेंसेटर आप क्लेम कर रहे हैं कि इसने मुझे अपना एक्स्ट्रा फेज जो मुझे चाहिए था सही जगह पे मुझे दे दिया, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे तो इसने गन नहीं मचाया, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे देखो ना, इसने गेन इंक्रीज कर दिया। तो इस इंक्रीज्ड गेन का किस चीज पे इंपैक्ट होगा? कनेक्ट है इसको पिछले स्लाइड से। अगर आसपास में क्रॉस फेज ओवर, मॉड्यूलेशन सर। नहीं फेज तो बाद में आएगा ना, पहले क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को चेक करें ना। इसके इसको आपने जहां पे लगाया होगा देखो ना, हमें ये तो पता है ना कि हम ये हमें हमें ये एक्स्ट्रा फेज क्यों चाहिए, हमें कहाँ चाहिए? हमें क्रॉसओवर पे चाहिए ना, क्रॉसओवर के बाहर तो हमें नहीं चाहिए ना। तो आप जब ये अप्लाई करेंगे तो आप इस सेंटर को कहां रखेंगे? इस सेंटर को, इस सेंटर को आप रखेंगे ओमेगा सी पे। एग्रीड? जी सर। क्योंकि उधर आपको फेज चाहिए ना, फेज बाकी जगह पे तो नहीं चाहिए। अब जब आपने ये अप्लाई किया तो यही ओमेगा सी जो आपने समझ के लगाया था, यही ओमेगा सी शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट। समझ आ रही है ये बात?
तो इट विल बी एन इटरेटिव प्रोसेस, आप जो समझ के लगाएंगे वो गेन उसी को आगे, तो आपने वो जहन में रखना है। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हुए ना देखते कि अगर मैं ये करूंगा तो वो गाड़ी आगे चली जाएगी, तो ये आपने जहन में रखना है कि इंक्रीज्ड गेन at higher frequency, which is a characteristic of this lead compensator, will shift the crossover frequency to the right if it is near। और यहाँ पे तो near ही है ना, इस केस में तो आपको पता है कि near ही होगा। तो अब आपने थोड़ी देर पहले बताई ना बात कि इस शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी से किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, फेज मार्जिन पे, ठीक है। तो इससे क्या मतलब लेगी कि आपको क्या करना चाहिए कि आपने ये जो मैक्सिमम फेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली थी ना कि मुझे इतना फेज चाहिए एक्स्ट्रा, वो तो फिर से खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें आपने एक्स्ट्रा मजीद डालना है, जो इस फार्मूले से या इस प्लॉट से अगर आपको फाइव मैक्सिमम मिल भी जाए ना, तो आपने उसके साथ अपनी तरफ से 10 डिग्री या 20 डिग्री या 15 डिग्री जो भी आप समझते हैं उस टाइम पे, ट्रायल एंड एरर बेस्ड, आपने वो रूम रखना है ताकि अगर ये दोबारा डिग्रेड भी हो जाए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वजह से ओमेगा सी, तो आपको फिर भी अपना जो पुराना फेज मार्जिन है वो मिल जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? This is something which many people don't understand. Hmm? आपने ओमेगा सी, तो आपको पता होगा ओमेगा सी पे आपको ये भी पता है कि फेज मार्जिन खराब है, फेज मार्जिन को ठीक करने के लिए आपने लीड कंपनसेटर लगा दिया, और लीड कंपनसेटर को आपने कहा कि मुझे इतना फेज चाहिए। लेकिन जैसे ही ये गेन, क्योंकि गेन और फेज कनेक्टेड है, देखो ना मिनिमम फेज है, तो गेन जैसे ही इंक्रीज होता है तो ये वही फ्रीक्वेंसी वो आगे चली जाएगी, और आगे आपको पता है वो फेज डिग्री, तो इसका मतलब है कि जो आपको मैक्सिमम मिल रहा था वो मैक्सिमम नहीं मिलेगा, वो ये वाला फेज मिलेगा। तो आप तो मैक्सिमम के चक्कर में थे, क्रॉसओवर जब आगे शिफ्ट हो गया तो वो मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा। सो इसमें आपने अपनी तरफ से एक रूम, एक एक्स्ट्रा मार्जिन डालना। ये बात समझ आ गई? टेल मी। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताएं। लेट्स से आप ये नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मुझे ये शिफ्ट करना पड़े, और ये शिफ्ट सिरे से होना ही नहीं चाहिए, तो आप फिर क्या करेंगे? एनी आइडिया? लेट्स से आपको, आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इधर ओमेगा सी लगाया हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल ना हो, तो आप इस इंक्रीज इन गेन को आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू कैंसल दिस बाय व्हाट? देखो ना, ये तो आपका सिर्फ, इससे पहले आपने इसके साथ के भी लगाया होगा, वो हमने इग्नोर किया यहाँ पे ना। के लगाया होगा या नहीं लगाया होगा? प्रोपोर्शनल गेन तो आपने लगाया होगा ना अपनी स्टेडी स्टेट एरर या बैंडविड्थ के लिए। अब वो के साथ अगर आप ये मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये सारा किस जगह पे हो रहा है, ये ओमेगा सी पे बेसिकली आपका गेन ये है ना, आप ओमेगा सी नहीं हटाना चाहते, तो जो ओमेगा सी पे ये वाला गेन है, यही गेन आगे चेंज हो रहा है ना। तो अगर आप ये फैक्टर कैंसिल कर दें, तो अब मुझे बताओ इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये फैक्टर कैंसिल हो जाए? कैन यू गेस? वो जो के मैंने कैलकुलेट किया था किसी और मकसद के लिए, उस के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये कैंसिल हो जाए? जब कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर इंक्रीज नहीं होगा, ओवरऑल सिस्टम में इंक्रीज नहीं होगा फिर। और ये मैं बिल्कुल इधर कर रहा हूं जहां पे क्रॉस ओवर है, क्योंकि क्रॉस ओवर से मैंने इसको ठीक करना है, फिर ये फिर सिरे से होगा ही नहीं। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, बताएं? हाउ डू आई कैंसिल दिस फैक्टर 1/√, अल्फा? आई विल, I'll multiply this with square root of alpha। स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसी ओमेगा सी पे इसको कैंसिल करेगा,
जब कैंसिल करेगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक या तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखें ताकि ये जब कम भी हो जाए तो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हो। अगर आप एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना चाहते तो आप अपने ओरिजिनल के को जो आपने किसी और मकसद के लिए स्टेडी स्टेट के लिए या बैंडविड्थ के लिए किया था, आप उसको अल्फा स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें, एंड बिकॉज अल्फा इज लेस देन 1, सो बेसिकली अल्फा स्क्वायर रूट विल बी ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि के जब आप सेलेक्ट कर रहे थे, के को बाद में आप कम करेंगे तो आप के को शुरू से ज्यादा इंक्रीज। तो ये इस अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लेट्स गो टू द फर्स्ट एग्जांपल। और ये आपने एक और, सॉरी, एग्जांपल से पहले ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इंक्रीज्ड गेन एट हायर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट द क्रॉस ओवर टू द राइट। ये तो खैर मैंने पहले भी कहा था। अच्छा, दूसरा ये है कि इस प्लॉट से आपको ये लगेगा कि मुझे मैक्सिमम फेज कितना मिल सकता है। प्लॉट को देख के बताएं, मैक्सिमम फेज कितना मिल सकता है। हम्म, यू विल थिंक कि मुझे 90 डिग्री तक फेज मिल सकता है ना, लेकिन 90 डिग्री के लिए आपको 1 और अल्फा की वैल्यू भी बहुत लार्ज चाहिए, which means that this will be large. So जितना भी हाई फ्रीक्वेंसी पे आप गेन इंक्रीज करेंगे वो नॉइज, आप बेसिकली नॉइज को एम्पलीफाई कर रहे होंगे। तो वी वुड नॉट लाइक टू यूज ए लार्जर वैल्यू ऑफ 1 और अल्फा। तो एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि 70 डिग्री तक ये एक्सेप्टेबल है। 70 डिग्री, ठीक है ना। 70 डिग्री तक जो अल्फा की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अगर आपको 70 डिग्री से ज्यादा फेस चाहिए ना, तो आप सिर्फ ये करें कि आप ये दो लगा दें। डबल लीड कंपनसेटर उसको कहते हैं। डबल लीड का मतलब ये है कि ये जो आपका कंपनसेटर है उसका आप उसको स्क्वायर कर दें। उसी जगह पे आप दो दो रिपीटेड पोल और रिपीटेड जीरो, तो ये आपको जो 70 है वो 70 प्लस 70 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, डू नॉट गो फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, क्योंकि आई थिंक कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट इट नाउ क्योंकि काफी लेंथी एग्जांपल है और ये शायद आपको फिर बाद में कनेक्ट ना कर सके। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से पहले मेरे ख्याल में ये स्लाइड मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि इट्स वेरी इजी। इट्स जस्ट अ फॉलो अप ऑफ दिस वन। अगर मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को देखूं, इस ट्रांसफर फंक्शन में अगर ये अल्फा की वैल्यू में लेस देन 1 की जगह ग्रेटर देन 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो और पोल स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, और दिस विल बिकम विच कंपेंसेटर, यू कैन गेस द नेम। आपका ये रिस्पॉन्स ऐसे होगा ना, और ये फेज यहाँ पे लेग होगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे देख लें। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, और इस टाइम पे चूंकि अल्फा लेस ग्रेटर देन 1 है, तो इट टर्न्स आउट दैट ओमेगा आई is the larger frequency breakpoint and omega I over alpha is the lower breakpoint. This is the middle, और ये आपको यहाँ पे मैक्सिमम फेज लेग मिल रहा है, इसको हम फेज मिनिमम कह रहे हैं क्योंकि आपका लेग मैक्सिमम है। और गेन आपका जो है ना, और इस टाइम पे गेन इट स्टार्ट्स विद अल्फा, इट एंड्स विद। तो अब यहाँ पे नोट करें कि लेग कंपनसेटर हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन को नहीं छेड़ता, ये लो फ्रीक्वेंसी पे गेन को छेड़ लेता है, इंक्रीज कर लेता है, विच मीन्स कि ये ओमेगा सी के साथ क्या करेगा, इट विल शिफ्ट इट टू दी लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज लोअर फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, तो अगर आपका ओमेगा सी यहाँ पे कहीं पे है तो ये इसको शिफ्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि इफ यू वांट टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, यू हैव टू लोकेट दिस लेग कंपेंसेटर अवे फ्रॉम ओमेगा सी ताकि उस पर इम्पेक्ट करना है। अगर ये क्लोज, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इंक्रीज्ड गेन एट लो फ्रीक्वेंसी because of this leg compensator will shift the crossover frequency to the left if near। तो आप इसको नियर ना रखें,
क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ना वो कर सकता है, आपका बैंडविड्थ कम कर सकता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी बेनिफिशियल एज वेल। अगर वो नियर बाय है और इसने इसको शिफ्ट कर दिया तो इट विल, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है ना कि ये फेज जो है ना, दिस फेज मार्जिन, दिस विल डिग्रेड द फेज मार्जिन, ठीक है ना, क्योंकि फेज भी ऐड हो रहा है ना, so you don't want to actually see that happening, so it's a good idea to keep this um, away from the crossover. ये समझ आ गई दोनों स्लाइड्स? In the next lecture we will be using uh, one of these compensators together with proportional, देखो ना, lead compensator together with proportional or lag compensator together with proportional, um, and later on we also will need to combine these two, क्योंकि कभी आपको लीड और लेग दोनों चाहिए होते हैं। सो अच्छा, आपने अगर आप इफ यू आर वंडरिंग कि हमने हम इसको हम लीड कंपनसेटर कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैं डी यूज कर रहा हूँ, डी, तो डी बेसिकली ये है कि ये पीडी की तरह है, ये इट इज सम, इट इज द प्रैक्टिकल वर्जन और रियलाइजेबल वर्जन ऑफ पीडी कंट्रोलर। और वो जो आपका लेग कंपनसेटर है उसमें आई इसलिए आ रहा है कि दैट इज बिहेविंग मोर लाइक अ पीआई कंट्रोलर, ठीक है। इसको आप चैप्टर 4 के साथ कनेक्ट करें तो इट मेक सेंस, यहाँ पे उसको आई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लेग भी वही करता है जो आई कंट्रोलर करता है, ठीक है, नियरली। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। वी आर काइंड ऑफ डन विद द लेक्चर। और अगले लेक्चर से पहले ना ये स्लाइड जो मैं, अच्छा मैं दूसरी चीज बताना भूल गया कि ये जो है ना दूसरी फाइल, जो मैं एसिम्प्टोटिक फाइल अपलोड करता हूँ ना, क्योंकि बहुत सारी मैथमेटिकल चीज ऐसी होती है जो मैं इस फाइल में नहीं रखना चाहता। ये एग्जांपल 6.5 की बुक में आपको ये वाली डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक है ना में बार बार मेटलैब की तरफ जाता है ना, तो मेटलैब में आप जारी बात है, मेटलैब जब सामने हो पे तो ठीक है, एग्जाम में तो कोई मेटलैब नहीं होगा। तो ये मैंने ये सारी वर्किंग यहाँ पे की है इस फाइल में, कि हाउ डू यू स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आप समझे। और सॉरी, एग्जाम्पल तो हमने शुरू नहीं किया ना अभी, एग्जाम्पल हमने शुरू नहीं किया, ठीक है। तो जब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे सो उससे पहले आप ये वाली फाइल जो है, ये फाइल में जो लास्ट पेजेस है ना दो, ये आप पढ़ के आ जाइएगा तब आपको समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि आई हैव डन दिस इन ए वे that should not require MATLAB, or even if it requires MATLAB, it will be very minimal. So let me stop the recording now.